शुरू कर देता हूँ। The speaker is not working properly. Speaker not working. Speaker से सारी आवाज तो हन वाला नहीं है ऐसा। चेंज करो। सारी की आवाज। आ रही सर आवाज? आ रही। इसका स्पीकर नहीं था। हाँ मतलब हम लोग इधर से आवाज नहीं। Okay, good morning all of you. It's a great matter of pleasure that we have gathered here for a specific purpose. That today we are going to listen and learn about credit system and online credit courses, SWAYAM courses and MOOCs courses. As we are very well aware about the new CBCS pattern which was implemented in 2019, and most of the students have filled recently the examination form, and you have find that there are different options for your credits, training credits, and no doubt there are lots of confusion among the students regarding how to earn the credits. So with these intentions, IQAC and sir, आपकी committee का नाम? E-Learning Resources Committee of our college have decided to organize this guest lecture. So I once again welcome you all in this day. First of all, as it is a I invite myself to nominate the president of today's function. It is my honor to nominate the name of the president of today's function, and I would like to nominate the name of Honorable Principal Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan sir as the president of today's function, and I second the same wholeheartedly, and I am requesting Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan sir to proceed the program further. Okay, thank you, sir. Okay. Now, for the felicitation of Honorable President of today's function, I would like to call upon Dr. Adil Aziz Momin sir to felicitate our President of today's function, Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad sir. Thank you, sir. Now, we have with us one of the very prominent personality of JT campus, and she is none other than Dr. Salma Abdul Sattar ma'am, academic and administrative coordinator. And for her felicitation, I would like to call upon Dr. Yahya Khan sir. Please, sir. Now, without wasting much more time, I would like to call upon Professor Naveed Akhtar sir for aims and objective of today's function. Please, sir. Hello, good morning everyone. I am here to present aims and objectives of this program. Here, MOOCs is a short form of massive open online courses. These are online courses that is open access and interactive participation by using the power of internet. And SWAYAM is the main target is to provide interactive courses that are prepared by the best teachers in the country at free of cost. These courses are free of cost. UGC has already issued UGC regulations in 2016 to transfer credits you earn by learning these courses to respective universities. And the current SWAYAM platform, which is developed by Ministry of Education and NPTEL, IIT Madras with the help of Google Incorporated and Persistent System Limited. These are the developers of this SWAYAM. And aims or objective of this program is to provide enough guidance and resources to students so that they can acquire their credit and knowledge
in their respective field. The courses delivered through SWAYAMs are available at a free of cost to learners. However, if they want the certificate of SWAYAM, they should register for the final examination, and which is to be conducted at designated centers in all over the country. You can choose that centers, and I hope this workshop will help students as per guidelines of new education policy to avail the resources on three axes of these are access by anyone, equity with everyone, and the quality of learning materials which are provided on these free SWAYAM or MOOCs sources. Thank you very much. मीटिंग जबरी सुन रही है। Thank you, Navid sir. Now we are going further. We have with us Honorable Academic and Administrative Coordinator, Dr. Salma Abdul Sattar ma'am, for her welcome speech. Please, ma'am. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. It's a proud privilege to become a part of online workshop which is organized by e-learning resource development cell of JT Arts Science Commerce College. The main source of inspiration for such type of webinars, online workshops, virtual conferences is none other than our dearest chairman, Honorable Alhaj Ansari Nehal Ahmad Sahib, who always motivates us for organizing such type of wonderful activity. Along with that, as we know very well, under the able guidance and leadership of Honorable Principal Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan sir, we are organizing such type of tremendous team. Along with that, as I know, there are about 600 participants registered for this workshop, and they are joining one by one, and inshallah till the last we will get a huge response from your side. The success of this online workshop, its a credit goes to our dearest professor, coordinator of this online workshop, or the coordinator of e-learning resource development cell of our college, Dr. Adil Momin sir, and the IQAC coordinator, Professor Munawwar sir, who struggled hard. Along with that, there are so many team members. The important one is Dr. Muhammad Ismail sir, Dr. Yahya Pathan Khan sir, Professor Pathan Mohsin sir, Professor Razi Anwar sir, Professor Naveed Akhtar sir, who gave their full support and cooperation for the success of this online workshop. Dear students, on this occasion, I welcome you all in this online workshop. As you have so many questions, so many doubts regarding 4 credit course, that is online certificate courses, as Professor Naveed Akhtar sir shared that these courses must be or should be arranged by the certified departments or cells which is given by Ministry of Government of India. But so far as myself is concerned, it is my personal opinion that there is an option which is given by SPPU Pune University that offline online courses can be conducted at college level. It is my personal opinion. I am doubtful about my this opinion, but I am trying to take the information, and inshallah whenever I will get the information, I will arrange the online course for your credit purpose, that is 4 credit course, as you applied in your online examination form.
Inshallah, we will try our level best, and best of luck for your online workshop. And students, feel free to ask us so many questions to our resource person of today's online workshop, Dr. Momin Adil sir. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your time spending here and enlighten us by your valuable speech. I am requesting all the participants, please unmute yourself and off your videos also. Okay, thank you all of you. Now it's time to listen presidential speech from the president today's function. And for this, I would like to call upon Dr. Ansari Muhammad Harun Khan sir for their presidential speech. Please, sir. Thank you, Ismail sir. Good morning to everyone. Hello everyone. All the dignitaries and the participants. Behalf of JT Trust, behalf of JT Arts and Commerce College, I welcome all the dignitaries and participants. First of all, I congratulate and appreciate the whole organizing committee from top to bottom that they try on their level their very best for the students, and I hope that this workshop will be very beneficial for credit system participants, and this will, I hope that will resolve all the queries and complaints that will be given in the past. So it will be very beneficial for students and as well as the teachers. So I again give my complaint to my this committee, and I hope that it will be very beneficial, and I hope that our other department also organize such beneficial and guided program for our students. I speak and I conclude my speech here. Thank you to all of you. Thank you so much, sir, for your very valuable speech for the participants. Now, without wasting much more time, I am going to invite Dr. Adil Aziz Momin sir, the resource person of today's guest lecture. He will deliver a very informative lecture regarding the credit system and online courses. So I am going to invite Dr. Adil Aziz Momin sir. Please, sir. Thanks a lot, Dr. Ismail sir. So first of all, I would like to thanks our honorable management and then our college to give us an opportunity to organize such a quality program. And then I would like to thanks all my colleagues and organizing committee of this e-learning resource development cell. So they have worked hard till today to organize this successful program. So let us start without wasting time. I start my presentation and I will wind up soon within a stipulated time. So how can we share the screen, sir? From here. Screenshot लेना था वो। हाँ, ले रहे हैं। Okay. Okay. So let us start, students. All of you ready for the presentation now? Can all of you see my slides?
Is my presentation visible to you? Okay. Yes, sir. You can write in the comments. Okay, comment box में आप लिख सकते हो whether you are getting my presentation or not. Okay, let us start. We have very little time left to finish my presentation. We have an allotted time of 40 minutes, as you all know. So let us start online certificate courses through SWAYAM and other platforms. So all of you know this is the part of extra 8 credits which we have to earn for completion of BA and BSc degree, as the university has implemented CBCS from 2019 in both these programs, BA and BSc. Okay, it is a 3 year 6 semesters and 132 credits program, and additionally you both BA and BSc students have to earn 8 credits. So how these 8 credits we can earn? For this purpose this webinar is organized. Okay, so I have few slides which describes the how these 8 credits can be gettable from different groups. So university has designed all those groups, and very just yesterday we have received a new circular from SPPU. They have restructured these 9 groups. So I have presented here both the old structure and new structure. There are few changes, so we will see one by one. In the group 1 there were 2 mandatory credits which a student will earn at FYB, BA or BSc level, and those 2 credits are from physical education. In semester 1 student will get 1 credit, and in semester 2nd student will get 1 credit from physical education. Okay, in the new circular which we have received just yesterday, the 2 more credits, mandatory credits, have been added in the circular. Okay, so those 2 credits are from democracy, election and governance course, which is compulsory in the semester 2nd at FY level. Okay, so you would get 2 more credits, and which are also mandatory. Means in the extra credits, you have to earn 8 extra credit, and from those 8 extra credit 4 are mandatory, which are from group 1. So there remains only a question of 4 credits. You have to earn only 4 credits from remaining 8 groups. There are now 9 groups. तो पहला ग्रुप हमारे लिए कंपलसरी है, जो हमको 4 क्रेडिट्स देकर जाएगा, और इसके अलावा 8 ग्रुप्स जो बचे उसमें से सिर्फ 4 क्रेडिट हमको हासिल करने हैं. तो अभी बड़ा और आसान काम हो गया हमारे लिए, बट स्टिल इट इज ए क्वेश्चन फॉर students who admitted in 2019 to 20, 19-20 में या 20-21 में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए थे CBCS में, तो उनके लिए ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि मतलब वो ये क्रेडिट को कैसे हासिल करें, क्योंकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड गवर्नेंस अगर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, या फिजिकल एजुकेशन अगर हो नहीं पाया है लॉकडाउन की वजह से, सो दोज स्टूडेंट्स शैल ऑप्ट फॉर दिस क्रेडिट्स. उनके लिए ऑप्शन रखा जाएगा कि ये क्रेडिट वो और किसी ग्रुप से ले सकते हैं. ओके, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 19-20 और 20-21. 20-21 और 19-20 में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए उनके लिए ऑप्शन रहेगा. अदरवाइज जो अभी 21-22 से पढ़ने वाले, ये लोग बिल्कुल ही रूल्स और रेगुलेशन में बंधे रहेंगे, और इनको फर्स्ट ग्रुप के 4 क्रेडिट्स लेने रहेंगे. ओके, सो लेट अस सी सेकंड ग्रुप में हम क्रेडिट कैसे हासिल करते हैं. आपको कोई स्पोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, जो पहले कॉलेज लेवल का मेंशन किया गया था, लेकिन अब उसको इंटर कॉलेजिएट कर दिया गया है. अगर 1 क्रेडिट आपको स्पोर्ट्स में से हासिल करना है, तो आप इंटर कॉलेजिएट लेवल के कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि कॉलेज लेवल पे. ओके, कॉलेज के अंदर होने वाला प्रोग्राम अब नहीं चलेगा, वो इंटर कॉलेजिएट कर दिया गया है. और साथ ही साथ इंटर यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल पे आप अगर कोई अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, तो आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे. ओके, लेट अस सी थर्ड ग्रुप में कोई खास चेंज नहीं है हमारे लिए. यहाँ पे सिर्फ NSS चलता है चूंकि, तो पार्टिसिपेशन इन
7 डेज कैंप जो एनएसएस में लगता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसका 1 क्रेडिट आपको यहाँ पे अर्न होगा। और जो स्टूडेंट्स एनएसएस में नहीं है तो उनको ये क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ एनसीसी और ये जो रिपब्लिक डे परेड, ये हमारा कॉलेज आपको ऑफर नहीं करता, सो इट इज नॉट ओपन फॉर यू। ग्रुप 4 में से आप क्रेडिट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके अंदर पहले आविष्कार को मेंशन किया गया था कि 1 क्रेडिट आप आविष्कार में से पार्टिसिपेशन से ले सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो 2 या स्टेट लेवल में 4 क्रेडिट आपको मिल सकते थे। इसमें से जो कल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटी जो ऊपर मेंशन था ओल्ड सिस्टम में, जो ऊपर मैंने ओल्ड सिस्टम लिखा हो और नीचे जो है तो न्यू सर्कुलर का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हो, तो कल्चरल और एक्सटेंशन दिया गया है। सो मे बी दिस इज बैड लक और हार्ड लक फॉर अस। और अब इसमें से आपको बिल्कुल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग आविष्कार के, और भी कुछ नाम वहाँ पे इंक्लूड किए गए, इंद्रधनुष है, उत्कर्ष है, अन्वेषण है, आह्वान है ना, ऐसे अलग अलग इंडिया में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस ग्रुप 4 इज अनयूजेबल फॉर अस। ओके, 5th ग्रुप अगर आप स्टडी करेंगे तो इसको मतलब तकरीबन वैसे ही रखा गया है कि रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आप कुछ अपने कॉलेज लेवल पे कुछ रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करो, कोई वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस में, और आप 2 से 3 क्रेडिट्स यहाँ पर हासिल कर सकते हो। अगर आप स्टेट लेवल को अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो 1 क्रेडिट, नेशनल लेवल को 2 क्रेडिट, और इंटरनेशनल लेवल को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो आपका रिसर्च, तो आपको 3 क्रेडिट्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, याद रहे कि हमको सिर्फ 4 क्रेडिट्स लेने रहेंगे जो अभी 21-22 से एडमिट हुए, है ना, क्योंकि पहले ग्रुप के 4 क्रेडिट उनको कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, ओल्ड स्टूडेंट के लिए हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। यू कैन कम टू द कॉलेज एंड मीट द प्रोफेसर्स ऑफ हियर टू गेट मोर नॉलेज एंड मोर क्लियरेंस अबाउट आइडिया। ओके, ग्रुप 6 में से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे रखा गया था पार्टिसिपेशन इन समर स्कूल प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल को ये सब कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब रेयरली पॉसिबल था कि वो कहीं और जाए, हमारे ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रोग्राम बीए बीएससी कहीं और यूनिवर्सिटी में जाए और 1 वीक या उससे ज्यादा रुक के क्रेडिट्स हासिल करे। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये साल खास तौर से दिया गया है 2020-21 में कि कॉलेज लेवल पे जो एड ऑन या वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्सेज कंडक्ट किए जा रहे हैं तो उसके क्रेडिट भी यूनिवर्सिटी कंसिडर करेंगी। सो दिस इज वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द न्यू सर्कुलर फॉर अस। हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि हम मतलब कॉलेज लेवल में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश हमारे मनोवर सर कंडक्ट करते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंग्लिश, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल से, उर्दू और जो भी हमारे आर्ट्स के सभी डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट 1 से 2 कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज साल में कंडक्ट करता है। तो आप उसमें बिल्कुल हिस्सा लीजिएगा, उसके क्रेडिट्स आपके डिग्री अर्न करने के लिए पकड़े जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। ओके, सो ये दिस इज अ गुड न्यूज फ्रॉम न्यू सर्कुलर फॉर अस। 7 ग्रुप में जो साइंटिफिक और सोसाइटल सर्वे 2 क्रेडिट्स का था, इसको दरअसल थोड़ा सा इसमें 8वां ग्रुप भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो फील्ड विजिट, स्टडी टूर थे, इंडस्ट्रियल टूर थे, तो वो 7वें ग्रुप में मर्ज करके इनकी क्रेडिट घटा दिए गए। जैसे पहले साइंटिफिक सर्वे, सोसाइटल सर्वे को 2 क्रेडिट्स हुआ करते थे, तो अब वो 1 क्रेडिट में रिड्यूस हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ 8वां ग्रुप जो मॉडिफाई किया गया है तो वो है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज मूक्स, जो आज का जो वर्कशॉप होने जा रहा है, तो ये एक मिनट सर, एक इसकी लिंक बना दो ना गूगल मीट। हाँ, इसमें बना दो। हाँ, लिख रहा था, थोड़ा देर ऐसे ही सुनने वाला है। तो सभी इसमें ना शेयर करते नहीं भाई, बस ये सब ग्रुप में सर्कुलेट करो। Very soon you will get a new link for today's meeting that will be on Google Meet. Okay, as we are running out of time, our some time was wasted in the early minutes. Okay, so you will get a new meeting and a meeting link. You have to join by that link after these 50 minutes will over. Okay, so till then we will continue onto this platform only. So sorry for whatever
disturbances and inconveniences you have got from us. Let us see from 8th group जो पहले फील्ड विजिट इंडस्ट्रियल विजिट रखा गया था, अब इसको 7th में मर्ज कर दिया गया है। तो न्यू फॉर्मेट जो कल सर्कुलर आया है इसके अंदर ये 8th ग्रुप में जो है तो ये स्वयं मूक्स ऑनलाइन कोर्सेस आप कर सकते हो। मतलब अब सर्टिफिकेट कोर्सेस आप 2 जगह मार्क्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बताया 6th ग्रुप में भी आप जो कॉलेज लेवल पे जो कोर्सेस चल रहे हैं इसमें ले लो 1 से 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, या आप यहाँ पे 8th ग्रुप में स्वयं पे ऑनलाइन जो NPTEL के जो वेबसाइट है, जो ऐप है मोबाइल ऐप, उसमें रजिस्टर करो और उसमें एक कोर्स को एनरोल करो, उसको कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट हासिल करो, आप वहां पे भी क्रेडिट उसका अर्न कर सकते हो, है ना। सो इट बिकेम इजी। इन द 9th ग्रुप विच वाज स्वयं अर्लियर, अब उसको बिल्कुल नया नाम दे दिया गया है NCC एज इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स। एक NCC नाम का एक कोर्स यहाँ पे लाया जाएगा कॉलेज लेवल्स को, जो अभी तक हमारे कॉलेज में नहीं है या बहुत सारी जगह मैक्सिमम जगह अभी तक नहीं है, या कंज्यूमर अफेयर्स, है ना। ऐसे 2 कोर्सेस लाए जाएंगे क्रेडिट कोर्सेस, और वो आपको ऑप्ट करना रहेंगे। जैसे वो गवर्नेंस इलेक्शन वगैरह जो है, उसी तरह के ये 2 कोर्सेस और लाए जाएंगे जो 4 या 2 क्रेडिट से रहेंगे। तो ये हमको करना रहेंगे एक्स्ट्रा 8 क्रेडिट्स अर्न करने के लिए। ओके, आई होप all of you getting these groups from which we can earn 8 extra credits. Okay, आप ये ग्रुप समझ रहे होंगे कि 9 ग्रुप्स कैसे यूनिवर्सिटी ने ये किए। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट all the any professor of this college, and all the professors are very aware of these circulars, so they can guide you for your future. Okay, let us see what are the advantages of these MOOCs or these स्वयं programs, स्वयं courses. इनके advantages क्या है? ग्रुप्स में डाल दो व्हाट्सएप पे। Okay, you might have got the link for another meeting of Google. Okay, हम उस पे भी कंटिन्यू करेंगे जब तक ये चल रहा है, चलने देंगे। Okay, let us see क्या एडवांटेजेस है ऑनलाइन कोर्सेज करने के। ये एक तो ये होता है कि बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर हमको मिलता है यहाँ पे, कि मतलब अगर पूरे स्वयं के कोर्सेज ओपन करके देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दीज कोर्सेज आर रन बाय वेरी हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स. They are from IITs, IISERs, and very famous universities. So you will get a best in class instructors for these courses. That is first advantage. Then weekly assignment. You are judged, you are assessed weekly for these courses. हर वीक में आपको कोई नई असाइनमेंट दी जाती है, कोई नई टास्क दी जाती है और वो आपको कंप्लीट करना होती है। उसके बाद एग्जाम्स प्रॉक्टर्ड होते हैं, बिल्कुल अंडर CCTV कैमरा सर्वेलेंस होते हैं, और इसके अलावा बहुत ही एक्सपर्ट्स हायर किए रहते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और वो आपकी एग्जाम लेते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वहां जाके आपको ये एग्जाम देनी होती है। इजी क्रेडिट ट्रांसफर, दे हैव ए चैनल थ्रू विच दे विल ट्रांसफर योर क्रेडिट्स टू डायरेक्टली टू योर यूनिवर्सिटी, है ना। अगर यूनिवर्सिटी आपके कोर्स को कंफर्म करना चाहे तो वो डायरेक्टली स्वयं से कांटेक्ट करके वो देख सकती है कि आपने ये कोर्स किया है या नहीं किया है ना। इजी क्रेडिट ट्रांसफर। एक्टिव लोकल चैप्टर्स, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कॉलेज लोकल चैप्टर में रजिस्टर है और आपके यहाँ से एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर मिलते हैं स्वयं वालों को, तो वो आपका कॉलेज खुद एग्जाम सेंटर बोल के दे सकते हैं, डेसिग्नेट कर सकते हैं। मींस दे विल अलाउ योर कॉलेज एज देयर एग्जामिनेशन सेंटर। स्वयं वाले क्या करेंगे कि हमारे कॉलेज को ही एग्जाम सेंटर बना देंगे। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, पार्टिसिपेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं, सो दे विल मेक आवर कॉलेज एज एग्जाम सेंटर। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, प्रॉक्टर्ड एग्जाम देने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे कॉलेज से, हमारे लोकल चैप्टर से हम एग्जाम देंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, our college is registered as active local chapter in Swayam. That is a good news for us. So next is systematic approach. तो ये सभी सिस्टम जो है काफी सिस्टमेटिक होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में कोर्सेज बनाए जाते हैं और वो डिलीवर किए जाते हैं। तो ये और एक्स्ट्रा एडवांटेज है स्वयं पे कोर्सेज करने का। ओके, सो नाउ लेट अस सी। सर
नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? Recording चल रही है ना? हाँ, ओके हाँ, ये है। okay. Let us see, if you log in, if you are using desktop or computer, laptop, okay, so from that you will have to log on to this website swayam.gov.in. और अभी हम देखेंगे स्वयं पे हम खुद को रजिस्टर कैसे करें और नए कोर्स के लिए एनरोल कैसे करें। ओके, ये हम देखने वाले हैं। If many people have been joined through Google Meet, so let me share my screen from Google Meet also, so that they can also follow me with my presentation. I hope you all are getting what I'm trying to say. So as soon as you join, you log on to the website swayam.gov.in, you will get this page open. Then you have to click on that red icon, sign in or register. So you will get next page open in the form of this. Okay, इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको वो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। अब चूंकि हम नए कैंडिडेट्स हैं तो हमको क्या करना रहेगा यहाँ पे, वी विल प्लीज वेट, we have few more participants to get admit. हाँ, okay, so you will sign up, you will click on the sign up now, है ना। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे और हमको नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होंगी इस तरह की, जहाँ पे आप आपकी इंफॉर्मेशन भरेंगे, यूजर नेम, न्यू पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड रखना है उसके अंदर जो भी उनके रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ओके, अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड आजकल प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद आप आपका जो भी चलने वाला ईमेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे नीचे, और जैसे ही वो ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो वहां पे आप बोलेंगे सेंड वेरिफिकेशन कोड, और सेंड वेरिफिकेशन कोड बोलेंगे तो वो आपको इस तरह का कोड सेंड करेगा जो आपके ईमेल आईडी पर आएगा। ओके, ईमेल आईडी पर ये कोड आने के बाद वो आपको वहां पे इंसर्ट करना रहेगा। कहाँ पे, देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एक वापस से बॉक्स ओपन होता है और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप न्यू स्क्रीन पे इस तरह आ जाएंगे। डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं मैं, लैपटॉप और कंप्यूटर पीसी से जो लॉगिन करेंगे तो वो इस तरह का डिस्प्ले होगा और आपके राइट साइड में ऊपर ईमेल आईडी लिखा हुआ है। सो यू विल फाइंड द ईमेल आईडी ओवर देयर। ओके, देन उसके आगे क्या होगा, हमको ये यहाँ पे कैटलॉग दिया हुआ है कि हमको एक कोर्स के लिए अब रजिस्टर करना है जिसमें हम इंटरेस्टेड है। तो आप कैटलॉग पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ कोर्स कैटलॉग, तो आपको इस तरह के कुछ आइकॉन्स मिलेंगे, है ना। उसके अंदर अलग अलग फील्ड वहां पे ओपन हो रही है। तो सपोज हम ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह और एक वहां पे आइकॉन ओपन होता है बाजू में, है ना। उसमें अलग अलग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के एरियाज है, सब्जेक्ट्स है। तो फिर उस कोर्स को, मतलब जो उस एरिया को, उस सब्जेक्ट को आप जब क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट के अंडर में आने वाले कोर्सेज वहां पे दिखाई देंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको वहां पे सब्जेक्ट दिखाई देंगे। और फिर इसमें से जैसे यहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट आए, फॉर एग्जांपल कल्चरल स्टडीज है, माइंड एजुकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एलिड सब्जेक्ट्स है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल पर जाएंगे। इस कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल ओपन होंगी वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एलिड सब्जेक्ट्स, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो अब उसकी समरी आ गई कि कौन सा प्रोफेसर वो कोर्स ले रहा है ना। इट इज बाय प्रोफेसर योगेश गंभीर। कहाँ से है वो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो ऐसा आप उस प्रोफेसर की डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ से ये कोर्स कंडक्ट किया जा रहा है, कौन कंडक्ट कर रहा है इसको। ओके, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड में देखो समरी दी गई है।
समरी में दिया गया है कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, उसके अलावा यहाँ मतलब कोर्स कब एंड होने वाला है और बहुत सारे उसके क्रेडिट्स कितने हैं। ये कोर्स कौन से लेवल के लिए, देखो वहां पे लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एलिट सब्जेक्ट्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इवन यू कैन आल्सो enroll, register for this course, but it will be little difficult for you because the syllabus and the whole curriculum of this subject will be of postgraduate level, है ना, थोड़ा सा टफ रहेगा हमारे लिए। Still, if you are accepting the challenge, you can go for this, okay? अब इसको एनरोल कैसे करना है, तो ऊपर ज्वाइन वहां पे रेड दिया हुआ है, देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एलिट सब्जेक्ट के नीचे प्रोफेसर का नाम है और वहां पे ज्वाइन नाम की लिंक है, उस पर क्लिक करो तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, उसको भरो, आप एनरोल हो जाते हो और उसके बाद आपको सभी उसके अंदर के असाइनमेंट्स वगैरह दिखाई देंगे। ओके, अभी तक ये कोर्स के लिए 515 एनरोलमेंट हो चुके हैं, है ना, इस तरह से वहां पे इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। लेट अस सी मोबाइल में ये सब कैसे करेंगे, है ना। तो मोबाइल में सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको इस तरह का सिंबल वाला ऐप नजर आएगा, स्वयं, है ना, स्वयं वाला सिंबल का ऐप नजर आएगा और आप फिर उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ओके, इंस्टॉल करने के बाद यू विल फाइंड सच विंडो। ओके, अब उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेट अस सी व्हाट यू विल गेट। ओपन करने के बाद आपको इस तरह की विंडो आएंगी, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इन और रजिस्टर करेंगे। साइन इन और रजिस्टर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट पे लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और जैसी मैंने प्रोसीजर बताई है वैसे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे आपको प्रोसीजर पहले बताई गई है वैसे ही आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और फिर वापस से यहाँ पे आएंगे हम, वापस से आप मोबाइल ऐप में आएंगे और फिर साइन इन करेंगे वही आईडी और पासवर्ड से। ओके, सो आफ्टर साइनिंग इन और आफ्टर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप साइन इन हो जाओगे तो आपके सामने ये लिंक, ये विंडो नजर आएंगी, है ना। ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सी आई एम गेटिंग टू मेनी invitations to join, so I am joining them, so that is why you are getting little disturbances from my side. हाँ, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा और ये डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा तो वहां पे देखो अलग अलग चीजें दिख रही है। ऊपर बैजेस लिखा है, सर्टिफिकेट्स लिखा है। अगर आपके जो कंप्लीटेड कोर्सेज होंगे, अगर आप ओल्ड कस्टमर है, स्वयं के ओल्ड यूजर है, तो आपको यहाँ पे सब मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और बैजेस नजर आएंगे। अदरवाइज आपके सामने नीचे देखो मेरा ये खुद का लॉगिन है, तो यहाँ पे एक अपकमिंग और ऑनगोइंग कोर्स दिखा रहा है और एक कंप्लीटेड कोर्स दिखा रहा है। तो अभी सपोज मैं कंप्लीटेड कोर्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ये कंप्लीटेड कोर्स यहाँ पे ओपन हुआ। देखो 2019 में मैंने कोर्स किया जो 1 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन केमिस्ट्री फॉर हायर एजुकेशन। ये कोर्स मैं कंप्लीट किया हूँ, तो ये मेरे कंप्लीटेड में दिखाई दे रहे हैं, है ना। इस पे अगर मैं अंदर भी क्लिक करता हूँ तो अलग अलग ऐसे विंडो आएंगे, उसकी डिटेल आएंगी, कौन से प्रोफेसर ने लिया, उसका टाइटल क्या था, कितने लोग एनरोल थे, है ना। ये सब चीजें देखो वहां पे नजर आ रही है वन बाय वन। उसका स्ट्रक्चर कैसा था, फर्स्ट वीक में क्या मॉड्यूल वो प्रोफेसर ने हमको दिए थे और कैसे फर्स्ट वीक की क्विज हुई थी, है ना। इसी तरह सेकंड वीक, थर्ड वीक। तो ये देखो एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैं पहले मेंशन करना भूल गया कि स्वयं पे 3 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स। कितने, 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स। इस तरह के 3 तरीके के कोर्सेज स्वयं पे अवेलेबल है। अब इनके क्रेडिट्स कैसे है, जो 4 वीक्स का कोर्स है, 4 हफ्ते का, तो वो 1 क्रेडिट का है। जो 8 वीक का जो कोर्स है वो 2 क्रेडिट्स का है, और जो 12 वीक का कोर्स है सो ऑफ कोर्स वो 3 क्रेडिट का कोर्स है। तो इसी तरह मतलब इस तरह आज की डेट में स्वयं पे 3 तरीके के कोर्सेस अवेलेबल है, 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट्स। ओके, 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स, इस तरह के 3 कोर्सेस अवेलेबल है। तो
ये जो मैंने कोर्स किया था तो ये ओल्ड पैटर्न में का था। लेट अस सी इसमें आगे हम क्या क्या देख सकते हैं। अपकमिंग कोर्स पे अगर मैं टिक करूंगा तो मैंने एक कोर्स के लिए एनरोल किया था जो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। सो इट इज वो मेरे को ऑनगोइंग में दिखाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ना। इसको मैंने रजिस्टर किया था 1 दिसंबर 2020 को और इसकी एग्जाम हो गई। देखो 10 अप्रैल 2021 को नीचे बता रहा है कि इसकी एग्जाम हो चुकी है, जबकि वो एग्जाम को मैं अपीयर नहीं हुआ। सो स्टिल इट इज शोइंग दैट कोर्स इन माय ऑनगोइंग। ओके, मेरे ऑनगोइंग में वो बताता है ये कोर्स को, जबकि अब वो कोर्स खत्म हो चुका है। ओके, सो व्हाट कैन यू डू नाउ? अब आप क्या करेंगे? ये तो मैं कर चुका सब। आप क्या करेंगे? नीचे कैटलॉग में जाएंगे, है ना। कैटलॉग में जाके आप अगर देखेंगे तो इस तरह के आपको अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया है कोर्सेज को, तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। और आपके पास एक डायरेक्ट सर्च ऑप्शन है कि जो एरिया में आप इंटरेस्ट रखते हो तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे इस तरह से सी ये, हाँ, इस तरह से आप डायरेक्ट सर्च ऑप्शन में अगर जाते हो तो वहां पे भी आपको वो ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेस बताता है और फिर आप कोई भी इसमें से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑनगोइंग कोर्स, अपकमिंग कोर्स, है ना। ऑनगोइंग में बताता है वो कि जो अभी चल रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड, तो वो ऑनगोइंग में आता है। और कभी कभी उसमें एनरोलमेंट अवेलेबल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑनगोइंग कोर्सेज में कोर्स भी शुरू हो चुका होता है लेकिन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाकी होती है, तो वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट एंड वी कैन रजिस्टर फॉर दैट कोर्स। और बैक डेटेड में आप उसके मॉड्यूल भी पढ़ लो और आप उसके असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते। दैट इज ए चांस गिवन बाय स्वयं टू अस। ओके, उसके साथ आप अपकमिंग कोर्सेज में जाएंगे तो आपको अपकमिंग कोर्सेज बताएंगा वो जिसके रजिस्ट्रेशन डेट अभी बाकी है और कोर्स भी शुरू होना बाकी है। तो अपकमिंग कोर्स में अगर आप करंटली जाएंगे तो आपको 24 जनवरी में से नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, आपकी मालूमात के लिए। तो 24 जनवरी से बहुत सारे नए कोर्सेज स्वयं स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी इसको रजिस्टर करें। और आर्ट्स वालों के लिए तो खास तौर से ज्यादा क्रेडिट्स आपको लेने हैं, क्योंकि अचानक से एडिशनल 8 क्रेडिट्स का बोझ आप पर लाद दिया गया है। तो आपको ये कम टाइम में, खास तौर से TY BA वाले, तो इनको कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट्स अर्न करने, तो वो लोग मतलब कोशिश करें कि कोई भी चांस हम गवाए ना, कोई भी चांस हमारे हाथ से जा ना पाए और हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्रेडिट्स को अर्न करें, हासिल करें। ओके, लेट अस सी, जब हम कहीं सर्च करते हैं, अगर सर्च ऑप्शन में जाके मैंने केमिस्ट्री टाइप किया वहां पे और मैंने सर्च किया तो मुझे केमिस्ट्री के टॉपिक से अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे ओपन हुए, देखो। और सभी तकरीबन फ्यूचर के आने वाले कोर्सेज है। कुछ ओल्ड कोर्सेज भी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमको उससे लेना नहीं है। जो आने वाले कोर्सेज जो 24 जनवरी को शुरू होने वाले हैं, है ना, दोस कोर्सेज वी विल टेक इंटरेस्ट इन। सो 24 जनवरी के आने वाले कोर्सेज, सपोज मैंने एक कोर्स सिलेक्ट किया यहाँ पे, बेसिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। मैंने क्या किया, बेसिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स मैंने सिलेक्ट किया, तो ये ओपन हो गए मेरे सामने। इस तरह के कुछ विंडोज ओपन हो गए, है ना, जहाँ पे मुझे वो कोर्स की डिटेल दे रहा है, पहले उसके बारे में कुछ मालूमात है। प्रोफेसर मैती IIT बॉम्बे से एक प्रोफेसर है, बड़े साइंटिस्ट है, ये कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं और टोटल एनरोलमेंट 3013 हो चुके हैं, है ना। इस तरह की मालूमात वहां पे दे रहा है और प्रोफेसर के बारे में भी कुछ और एक्स्ट्रा मालूमात वहां पे लिखी हुई है। उसके बाद और अगर डिटेल में जाएंगे आप उसमें, तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि ये सर्टिफिकेट कोर्स कितने क्रेडिट का है, कितना उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, और फिर उसकी समरी देखो एक पेज पे दी हुई है साइड में, है ना। ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड होगा, एग्जाम डेट भी डिक्लेयर है देखो इसकी, है ना। दिस इज वेरी शेड्यूल्ड कोर्स, बट द वन थिंग वी मस्ट नोट हियर कि ये जो कोर्स है 4 वीक का है और 1 क्रेडिट का है ना। तो आपको कितने क्रेडिट्स की जरूरत है, आप इसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए वैसा कोर्स चुनेंगे कि हम उतने कोर्स अर्न कर पाए, है ना। तो ये 1 क्रेडिट का कोर्स है, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने रजिस्टर कर चुका हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से 2 क्रेडिट्स, 3 क्रेडिट्स के कोर्स चुनिएगा और उसको रजिस्टर करिएगा। लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट। आफ्टर क्लिकिंग ज्वाइन टैब,
अब जैसे ही आप ज्वाइन टैब पे क्लिक करते हो, चाहे आप डेस्कटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो, चाहे आप मोबाइल पे हो, यू विल गेट इन न्यू लिंक, है ना। कैसी रहेंगी वो लिंक, देखो सी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा हमसे, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। आपको प्रोफाइल के बारे में पूछा जाएगा, फिर से आपको अपना नाम टाइप करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके अलावा आपको जो भी पूछे जा रहा है नीचे वो सब हायर क्वालिफिकेशन और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, है ना, ये सब आपको भरना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ, आपका एज ग्रुप क्या है, ये सब भरने के बाद आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस डाटा यू विल स्क्रॉल नीचे, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरनी है जिसमें पूछता है वो कि वेदर यू आर ए पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर। क्या पूछ रहे हो, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, तो हम यस करेंगे क्योंकि हमारा जेईटी कॉलेज स्वयं लोकल चैप्टर का पार्ट है। ओके, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे और वो मिल जाएगा अपने को। आप जैसे जेईटी आर्ट साइंस कॉमर्स डालेंगे नीचे तो वो नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद नीचे अपना एरिया वगैरह पूछता है वो, तो उसको भी सिलेक्ट करो और फिर नेक्स्ट विंडो आपको इस तरह से डिस्प्ले होंगी। आपको फाइनली एग्री करना है दोनों चीजों को और ये फॉर्म को सेव करना है और आप रजिस्टर हो जाओगे। ओके, सो लेट अस सी, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली फिर उसके बारे में अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने मेरे मोबाइल पे बताया ना आपको कि वीक 1 वीक 2 मॉड्यूल्स और क्विज कंपटीशन, जो भी क्विजेस होते हैं वीकली क्विज, तो वो आपको वहां पे देखने मिलेंगे। ओके, और आप इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने देखो अभी एक स्क्रीनशॉट डाला हो, ये बता रहा है हमको कि हमारा जो जेईटी कॉलेज है तो वो स्वयं लोकल चैप्टर पे रजिस्टर्ड है। ओके, यहाँ पे बता रहा है वो हमको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने ये ऑनलाइन सर्च किया हो अपना कॉलेज और वहां पे हमारे कॉलेज का नाम है NPTEL के लोकल चैप्टर्स में, है ना। वहां पे IIT बॉम्बे कोऑर्डिनेटेड लिखा है आगे और SPOC रजी सर का नाम लिखा है। तो इस तरह से हमारा कॉलेज वहां पे रजिस्टर्ड है। अब लेक्चर ऑलमोस्ट मैं वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा। लेट अस सी कि आगे यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मेरा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, इसके आगे का जो भी गाइडेंस है तो आप प्रोफेसर्स को पर्सनली आकर पूछ सकते हो, है ना। हमारे प्रोफेसर्स भी इन सब में एक्सपर्ट्स हैं आजकल। मतलब दीज पैंडेमिक, COVID-19 pandemic and these prolonged elongated lockdowns have forced us into these online teaching and learning processes. So every teacher of our college is expert in all these processes, so you can meet them personally, you can have a personal counseling with them to get more information about these swim courses and other online learning platforms and all these credit matters. Okay, so thank you for careful listening and best of luck for your future. You can ask me a question. I'm available you for next few minutes. Okay, let me unmute yourself, you all. Sir, ask to unmute, na? Dear participants, after this program will over, you will get a link to fill the, to give your feedbacks about this online workshop. So you can now unmute your microphone and have a chat with us. You have a freedom to ask any question about today's workshop. If there is no more question, we will end this workshop here, and you can for more information you can contact to our college professors. So thank you very much for listening to me, and I also thanks once again to our management. Then I also express my sincere gratitude towards
our college, our principal, our coordinator, Dr. Sarmapur Sattar ma'am, and then all my colleagues who have helped me in making this program a very much successful. So thank you all of you. Can I quit now? कोणती PDF? पूर्ण? नाही, नाही. चालतंय. आणि